Hello everyone, I'm back with you all again with the last video on group discussion. अगर आपने मेरी तीनों वीडियो ग्रुप डिस्कशन की देखी हैं, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी. So इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्बियाज के बारे में. So what is verbiage? Verbiage is basically the way participants interact with each other. Their choices of words, the way they put their perspective in front of others, या मैं ये कहूँ एक वर्ड में tone and professionalism together is called verbiage. हम अपनी सब जब ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, हर कोई बोलना चाहता है. उसमें क्या होता है, कभी कभार the discussion becomes very warm. It's more of an assertive discussion. It's like an argumentative discussion. ये जो वर्बियाज होती हैं, ये बहुत हेल्प करती हैं उस डिस्कशन को कोलैबोरेटिव डिस्कशन बनाने में. अब डिस्कशन हमारा दो तरह का होता है ग्रुप डिस्कशन, कोलैबोरेटिव डिस्कशन एंड डिबेटेबल डिस्कशन. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कोलैबोरेटिव डिस्कशन. जब होता है तो आप कौन सा वर्बियाज यूज कर सकते हो? एक दो वर्बियाज आप याद करके जाओगे, इनफ है. लेट्स से पूरे ग्रुप में कन्वर्सेशन चल रहा है, एक के बाद एक कोई बोले जा रहा है, तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया to just appreciate what the other person said and then you start your conversation. Say अगर आपको अब चांस मिला बोलने का, so how will you begin? You can say, like my dear friend Raj just said about this. He shared a very interesting point on this topic, very knowledgeable point. I would like to add into it. So when you say that, it shows your leadership skills, how you are encouraging others, so that give an idea about the character. Another verbiage which you can use in a collaborative discussion is, I appreciate what my dear friend Raj just said and I would like to add further into it. Situation ऐसी नहीं होगी जैसी हम सोच रहे हैं. हमको लग रहा है कि हर कोई हमारी तरह ही वहां पर all verbiage and everything they will be using. नहीं, ऐसा नहीं है. वहां ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जितना भी बोलेंगे the chances of our selections are more. ठीक है, but they are absolutely wrong in that case. So अब हमें क्या करना है? जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो आप लोग सब लोग इंटरव्यू दे चुके हो, आई थिंक यू माइट अंडरस्टैंड दिस बेटर कि क्या होता है वहां पर कि जब आपको बोलने का ही चांस नहीं मिलता. अब इन दिस केस व्हाट विल यू डू? यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग उस टाइम चुप रह जाते हैं. हमको सब आता है, बाद में रियलाइज होता है. सो इन दिस केस यू हैव टू गेन द अटेंशन ऑफ एन इंटरव्यूअर. हाउ विल यू डू दैट? You have to raise your hand politely. Raising hand, moving a bit forward and just saying, my dear friend, I also would like to share my point on this topic. May I? That is the way. My dear friend, allow me an opportunity to share my thought on this topic. May I have that opportunity? My dear friend, allow me share my thoughts on this topic. अब बात करते हैं जो वर्बियाज आप डिबेटेबल डिस्कशन में यूज कर सकते हो. डिबेटेबल डिस्कशन मतलब जब आप एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हो, आप एग्री नहीं करते, और ये सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन में कई बार हम गलत वर्बियाज यूज करते हैं एंड वी when we don't agree, और हमारा वो जो टोन होता है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है. सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम डिबेटेबल डिस्कशन में हमें किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि हम सही हैं, आप गलत हो, क्योंकि यही है डिबेटेबल डिस्कशन. हम सबसे पहले यहाँ कह देते हैं आई डोंट एग्री. I don't agree is absolutely wrong. We can't say that. There is a polite way of saying that. Instead of saying I don't agree, you can say I beg to differ with you, my friend. Or, my dear friend, whatever you just said is not universally true. Two verbiage. Third, you remember I told you about the survey? अगर आप सर्वे पढ़ रहे हैं तभी आप ये यूज कर सकते हो. While I see your point, my friend, reality looks quite different when we look into the survey. So this way, we can use the survey that we have already read and we can relate it. अब आप सोचो, आप अपनी बात को justify करोगे, differ करोगे, and you will differ it with the survey, तो you are there, absolutely going to be there in the GD. आई होप आपको पूरी वीडियो में जो जो मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, प्लीज डू लेट मी नो. लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको ये क्लियर होगा कि वर्बियाज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. कतार एयरवेज के इंटरव्यू में वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी वेंट आई थिंक 2 to 3 years बैक, एंड आई टोल्ड हर अबाउट द वर्बियाज. ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग मैंने जो आपको सिखाया है और जो हम लोग ट्रेनिंग में और सिखाते हैं, दैट इज मोर एडवांस प्रैक्टिस. तो वो सब हमने करा था. एंड शी वेंट, टॉपिक मिला,
As usual, Qatar Airways का इंटरव्यू है, सबको बोलना है. She didn't get a chance to speak. And then she was politely raising her hand the way I told you. You remember? Raise your hand, move forward little bit, and just ask politely. My dear friends, I would like to say something. May I say? So, still, बहुत देर हो गई, उसको कोई चांस दे ही नहीं रहा था. थोड़ी देर बाद, एज आई सेड, इंटरव्यूअर्स को आपको उनकी अटेंशन आपको सीख करनी है. वो ही हुआ. इंटरव्यूअर ने कहा, लेट द ब्यूटीफुल लेडी से समथिंग, एंड देन शी गॉट अ चांस टू स्पीक. Then she just summarized the GD, concluded it, and then she came out and she wasn't happy. She said, "Ma'am, I'm not gonna be in." लोगों ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स इतना जबरदस्त बोला है, and I was just like, मैंने लास्ट में सिर्फ एक पॉइंट बोला, मुझे क्या वो लोग लेंगे. I was also bit thinking कि हाँ, I don't know क्या होने वाला है, but I was quite positive कि अगर उसने वर्बियाज यूज करें. I said just wait for the result, and guys, you won't believe it. Only 2 people were there after that round who got selected. I don't know, there were almost 20 to 25 people. उसमें से सिर्फ 2 लोगों को उन्होंने लिया. एक मेरी वो स्टूडेंट थी और एक लड़का था. So that is the power of वर्बियाज. क्योंकि वहां खाली वो लोग इंग्लिश नहीं देख रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स जज करने के लिए और बहुत सारे सेशंस हैं. वो जज करना चाहते हैं कि आप कैसे बिहेव करते हो एक ग्रुप में. I hope this video is helpful for you and it will help you. Let me know if you want me to make video or any other topic. आगे मैं videos बनाने वाली हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड कि कैसे अगर आप इंटरव्यू में जाते हो क्या क्या चीज़ों की आपको तैयारी करनी है इंडिगो के हिसाब से, अकासा के हिसाब से. I'm gonna make the videos on that. Till then, you take care. Goodbye.